Hi guys, welcome to another market analysis video. Today we'll do analysis of indexes and then some stocks. See, starting off with Nifty. See, currently in Nifty, we are in a corrective phase, and those who follow technicals or like Dow theory, those who know. See, this is the first high which we made, and this is the top. Then we made a low at this point. Yeah. Then again we made a high which was a lower high. Then again we made a lower low. This can also be considered for this. We made a lower low. Then again over here we made a lower high. Then again we made a lower low. And see, this trend line will act as a resistance, and at this area 17 300 400 350 to 400 will act as a resistance if we go up, and it will probably again be a lower high, and we can also see a lower low, and this can continue up to this point somewhere till here. इस रेंज तक वो आ सकता है पैटर्न, लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन। सी, ओआई डेटा भी चेक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन के लिए ही होता है वैसे इंट्राडे, क्योंकि नेक्स्ट दिन अगर मार्केट गैप से खुलता है तो उस अकॉर्डिंग पोजीशंस बनते जाते हैं। इसके लिए वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा लाइक फॉर फ्यूचर। सिर्फ वो एक दिन के लिए इंट्राडे के लिए बेसिस पे ठीक है। So this is the Nifty chart, and if we see the moving averages in Nifty, yeah, see this area, this is the 200 moving average line which is at 16293. अगर बैंक निफ्टी नीचे आते जाता है तो ये लाइन भी थोड़ा सा नीचे आएगा, somewhere around 16250. तो निफ्टी का सपोर्ट इज एट 16,000 to 16,200 250 के अराउंड, and the next resistance is 17,400 के around. Yeah, so this is Nifty, and you can start buying Nifty Bs because it has already corrected 8.4%. It was 11.6% at one point of time, but you can still start buying Nifty Bs. Yeah, and now we'll talk about Bank Nifty. See, if we take the daily chart of Bank Nifty, we can see a channel over here, and it is trading between these range only. And Bank Nifty is very weak compared to Nifty because if you see the moving average, this black line, it is the 200 simple moving average, and Bank Nifty ने इसके नीचे close दे दिया है. See, again here also, first we made a top, then a low, then a lower high, again a lower low, again a lower high, again a lower low, and this can be a lower high again, क्योंकि ये जो black line है it will act as a major resistance, और ये गैप भी है, तो गैप फेल हो गया तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पर तक अगर आता है तो। एंड इसका लो फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो अगेन पीपल विल शॉर्ट। सो दैट इज अबाउट बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी हैज आल्सो करेक्टेड अराउंड 17-18% from its top. Yeah, 17%. So this is a good chance to buy bank Bs because 20% रिटर्न इसमें मिलने के चांसेस है। कितने टाइम में मिलेंगे वो नहीं बोल सकते, बट इट इज इजी रिटर्न्स कंपेयर टू निफ्टी। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी। नाउ विल सी सम स्टॉक्स। फर्स्ट इज ICICI बैंक। आई हैव पिक्ड स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। See, if we see the daily and the weekly time frame, see ICICI bank always takes support on this channel or a trend line, whatever you can say. See, this is also a head and shoulder type of pattern, और अगर ये ब्रेक करता है तो it can go further a bit down, but
ज़्यादा जाने के चांसेस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर वापस ये एक सपोर्ट आ जाएगा. दिस एंटायर एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट. ठीक है, तो ICICI बैंक में यू कैन इन्वेस्ट. एंड मूविंग एवरेजेस सी, ये अपने 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है. और कभी ये देखो 100 मूविंग एवरेज से ये थोड़ा ब्रेक करता है बट वापस उसके ऊपर चले जाता है. सो अगेन इट हैज़ ब्रोकन, बट होपफुली वो ऊपर चले जाएगा. अगर नहीं जाता है तो यहाँ पर अगेन यू कैन एवरेज इफ यू आर बाइंग हियर एंड इट गोज डाउन. देन next stock is Reliance. See, Reliance is looking good because see, it was following a pattern. See, ये जो पैटर्न था उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा था एंड अ ब्रेकआउट एंड देन अ रीटेस्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. एंड this is given a good green candle, a bullish hammer on the 50 EMA, which is extremely bullish क्योंकि हर बार ये 50 EMA से सपोर्ट लेता था. एंड अगेन 50 EMA पे ग्रीन बुलिश कैंडल है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. तो यू कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग रिलायंस ऑल्सो. एंड इस 50 EMA के नीचे ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस इसका SL होना चाहिए. एंड अगेन इसका टारगेट ऑल टाइम हाई आएगा वापस 2750 के ऊपर. So this was the second stock. Now the third stock is L&T. See, L&T is extremely strong. Nifty इतना correct हो चुका है but still L&T hasn't corrected much. See, from the top it is only 6-7%, so which is nothing. And on a weekly time frame, see वापस you can plot these two indicators. The one is the 21 EMA and the pink line is the 20 simple moving average. See, हर बार उन दोनों के intersection पे on a weekly time frame it takes a support and bounces back. See, or here also, here and here also. See, here also we have a green candle. So this is also a stock to keep and watch. L&T. Next is Tata Steel. Yeah. Tata Steel on a weekly time frame. We have a very good support over here. See, and it is consolidating over here. तो वापस एक चांस है कि इस तरह से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर के साइड हो, नीचे के साइड भी हो सकता है. सो यू विल हैव टू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ओवर हियर ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस. बट स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है. इफ यू चेक स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी 7% का स्टॉप लॉस होगा हार्डली. एंड टारगेट वापस अपसाइड का जो भी है, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 11%. नेक्स्ट इज ऑल टाइम हाई विच इज अराउंड 35%. So Tata Steel is also a good stock. Then we have Tata Steel में भी ये 50 EMA से support on a weekly time frame. Then we have GMR Infra. If you want to play a risky bet, see, weekly time frame पे it is consolidating and Nifty has corrected so much, but this stock has not corrected. So अगर ये जो high है, we'll draw a channel. ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक होने पर यू कैन अगेन एंटर इन GMR Infra because it is a very strong stock. And on a weekly time frame also it is very bullish. इसमें स्टॉप लॉस बट आपका थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बिलो दिस कैंडल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस विच इज एट 38 समथिंग. या तो फिर आप ऐड कर सकते हो इसमें भी 21 EMA एंड 20 DMA पे, बिकॉज ये वहाँ से वापस सपोर्ट लेगा. देन वी हैव एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस. दिस इज अनदर रिस्की बेट. See, if we check the monthly time frame, chart is not loading this.
See, this is the multiple year breakout, राउंडिंग बॉटम और कप एंड हैंडल पैटर्न, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, एंड ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट। एंड इसका टारगेट होगा लाइक लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्ट अगर ऊपर के साइड करेंगे विच इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स। तो 105 से 100 पॉइंट्स इज अराउंड 200। तो आपका स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी छोटा होगा। अगर ये 102 है ये, और 94 का एसएल होगा, या 90 अगर नीचे के साइड ब्रेक कर दे और एक रेड रेड बड़ा कैंडल लाइक दिस, ऐसा कैंडल बन जाता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो फिर यू कैन एग्जिट, एंड अदरवाइज यू कैन होल्ड इट टू 200, अप टू 200। या दिस इज अनदर रिस्की बेट, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी छोटा है तो इसमें स्पेकुलेशन काफ़ी जल्दी कर सकते हो। एंड दी लास्ट स्टॉक इज TCS, which is a very strong stock. See, on a weekly time frame, see this is consolidating. This is my favorite pattern. कोई भी stock, I'll show you on trading view. Yeah, कोई भी stock अगर अप ट्रेंड में होता है एंड देन इट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग, एंड अगेन ये जो ब्रेक करता है इसके हाई को, देन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो अगर इफ वी सी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, see it is in a continuous uptrend, then a retest, and ये जो है consolidating, एंड दिस ब्रेकआउट। या डेली पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो या सी काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। सो इसका टारगेट भी वी कैन एक्सपेक्ट 4000, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये गैप भी है यहाँ पर, दिस वाज बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स, तो यहाँ तक जा सकता है TCS। एंड ऑन अ वीकली इट इज सुपर बुलिश, क्योंकि IT सेक्टर्स आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स, और वो पहले भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है TCS को, एंड मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है। सी दिस इज द रीजन ऑफ कन्फ्लुएंस। ये सपोर्ट ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है यहाँ पे। सो या this was the analysis on indexes and some stocks which are good for investment purpose. So thank you for watching.